रोज के आशीर्वचन कार्यक्रम में अंबिका नगर के ईश्वर पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी भी श्रीशैल में हमारे समक्ष रहते आए हैं। आज श्रीशैल जगतगुरु के आशीर्वचन का समापन होने के कारण उस उपलक्ष्य में इंग्लिश भाषा में पंडिताराध्य ईश्वर पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी 2 शब्द बोलेंगे। उसके बाद महास्वामी जी का आशीर्वचन शुरू होगा। 5 मिनट तक इंग्लिश का उपदेश आप लोग सुने। ओम श्री जगद्गुरु पंचाचार्य भूमि पंचांतम भूतान पंचाक्षरमनोपमान पंचसूत्रपितो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरुन्। यत्र पंचाचार्याः भजते तत्र सुखानन्दवर्धते, यत्र सधर्म आचरते तत्र सुशांति प्रवर्तते। ओम शांति शांति शांति। O God, let us from darkness to light. O God, let us from untruth to truth. O God, let us death to immortality. Om Om Om. First of all, I offering my heartily salutations the both of Jagadgurus, namely Srishail Jagadguru, Dr. Channasiddham Sivacharya Mahaswami ji, and also Jnana Simhaswadishwar 1008 Dr. Chandrasekhar Sivacharya Mahaswami ji. In his लोटस फीट में my salutations offering to holy feet, and also who are participated in this online program directly or indirectly. I am praying to them by blessings of both Jagadgurus to one and all. From 6 days I heard, you also heard about the speech of Purusha se Purushottam. That means man to superman. Srishail Jagadguru Mahaswami teaches very easily method that will reach to the every heart and can understand easily. As like that, Mahasannidhi also given speech to us. I am very, very happy to participate in this function. Give the blessings to me to talk for 5 minutes, but I should not take much time because of you are also waiting for holy speech of Srishail Jagadguru. So I don't waste the time. I will finish my speech as early as possible. What is the meaning of man to superman? How becomes the man becomes superman? Sannidhi told from 6 days. I don't repeated the points, but one point is I am telling to you. Srishail Sannidhi told, this is Triveni Sangama. How
You see one side of Lord Mallikarjuna, one side of goddess Brahmaramba Devi. In between of two temples, Sri Jagadur Panditar Peetham also situated here. This is the great. So it is one type of Triveni Sangama. Number two type, Triveni Sangama means Kashi Ganga and Srishal Padala Ganga and also Gnana Ganga. This is also Triveni Sangama one type. So all we are fortunate to participate in this program and had heard or hearing the speech of both of Kashi Jagadguru and Srishal Jagadguru's speech. First of all, I am thinking the man and Superman. Whatever may be, we are hearing more and more from 6 days. Finally, I am telling within 2 words. You do anything, you live anywhere, but you keep it to 2 points in your mind. Do good, be good, that's all. So many shastras are there, so many doctrines are there, but we not reach, we not follow that principles. But the Guru Darshana is very easy to salvation. I am telling this point and I finished my speech. Gurunam darshanam punyam sparshanam papanasanam sambhashanam koti tirtham vandanam moksharam. The 4 points obtained today to me and also to you. This is fortune of the in ancient states or reincarnation janma. This is reincarnation, punar janma, puru janma, as like that. So, Gurunam darshanam punyam, sparshanam papanasanam, sambhashanam koti tirtham, vandanam moksam. So, the 4 points all we are obtained and our life is successful and becomes great. So, I am praying once again the blessings of is both Kashi Jagadguru to one and all. Once again, thank you very much. ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम् सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को एवं भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए इस कार्य सानिध्य स्थान में विराजमान होकर सबका मार्गदर्शन करने वाले परमादरणीय परम श्रद्धेय श्रीमद् काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के परम पवित्र चरण कमलों में भक्ति पुरस्सर प्रणिपात समर्पित करके अब तक आंग्ल भाषा में अपने विचारों को व्यक्त किए हुए अंबिकानगर के स्वामी जी विगत 7 दिनों से इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप में भाग लिए हुए मेरठ के शरणम्मा, नीलम्मा, रुद्रगौड़ा,
पीठ के सभी सिब्बंदी वर्ग, तंत्रज्ञान के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र संदर्भ में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अभी के आशीर्वचन सुन रहे समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, पुरुषोत्तम बनने के साधन, बाधाएं और सुविधाएं, इन सब के बारे में चर्चा चल रही है। कल हम कह रहे थे पुरुष को पुरुषोत्तम बनना हो तो उसके लिए पुरुषोत्तम का और खुद का समझना बहुत जरूरी है। भगवान को जानने के लिए खुद को भी जानना बहुत जरूरी है। भगवान को प्राप्त करना हो तो उसके लिए उसकी जानकारी चाहिए, और भगवान की जानकारी चाहिए तो उसके लिए खुद की जानकारी चाहिए। क्योंकि भगवान केवल बाहर नहीं है, आप सब के अंदर भी वह विराजमान है। लेकिन लोग भगवान को बाहर ही ढूंढते हैं। परमात्मा अंदर विराजमान है, आप सबके अंदर विराजमान है। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः। देहो देवालय प्रोक्तः, यह जो देह है यही देवालय है। देवालय किसको कहा जाता है? जिसमें देव मौजूद होता है, जहाँ पे देव विराजमान होता है, उसी का नाम देवालय है। देह को देवालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस देह में स्वयं भगवान विराजमान है। सबके दिल में भगवान बसा हुआ है। खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है। कितने अच्छे ढंग से कहते हैं, खुद में खुदा है, खुदा कब जुदा है। यह जो राज नहीं जाने वो एक गधा है, वो एक गधा है। भगवान तुम सब में बसा, लेकिन हम अंदर झांक के देखते नहीं हैं। नहीं देखने के कारण उसका साक्षात्कार नहीं होता, उसका दर्शन नहीं होता, उसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन है वहीं पर। जो होता है वह दिखना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अनदिखे वस्तु इस दुनिया में कितने हैं? बहुत है। जितने दिखते हैं उससे 100 गुना ज्यादा अनदिखे चीज इस दुनिया में है। लेकिन नहीं दिखने के कारण
हम तुरंत ये निर्णय नहीं कर सकते कि वे नहीं होते, होते हैं लेकिन दिखते नहीं। नहीं दिखने के अनेक कारण बताए गए हैं शास्त्रों में। जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होता है वो दिखाई नहीं देता। जिस वस्तु के बीच में कोई दीवार खड़ा हो वो भी दिखाई नहीं देता। जो वस्तु अति दूर होता है वो भी दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत दूर जो वस्तु होता है दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई नहीं देने के कारण वो है ही नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते। कितने लोग अमेरिका देखे हैं, कितने लोग जर्मन देखे हैं, कितने लोग जापान देखे हैं, लेकिन उनके नहीं देखने के कारण नहीं है। जापान जर्मन नहीं होते ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम नहीं देखे हो, लेकिन वे है। तुम नहीं देखे हो तो क्या हुआ, वे तो है, लेकिन क्यों नहीं दिखते? बहुत दूर है इसलिए नहीं दिखते। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभावात समानाभिहाराच्च। सांख्य शास्त्र में 8 कारण इसके लिए बताए। वस्तु होते हुए भी नहीं दिखने के 8 कारण बताए हैं। 8 कारण। बहुत दूर का भी नहीं दिखता, इतना ही नहीं, बहुत बहुत नजदीक भी जो होता है वो भी नहीं दिखता है। आप रास्ते में चलते हैं, तेज हवा चली, जमीन से धूल उड़ी, धूल का एक कण आपके आंख में पड़ गया, आप तुरंत क्या करते हैं? आंख को पोंछते हैं। पोंछने के बावजूद भी अगर वो बाहर नहीं आया, साथ में चल रहे, अरे भाई देखो थोड़ा मेरे आंख में क्या पड़ा है, मुझे बहुत दुख रहा है, थोड़ा तुम उसको निकालने में सहायता करो। पड़ा कहाँ है? आंख में ही पड़ा है। देखने वाला कौन है? आपके सभी इंद्रियों में देखने वाला इंद्रिय कौन है? आंख ही देखने वाली इंद्रिय है, लेकिन आंख को दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि अति सामीप्यात, बहुत नजदीक होने के कारण वो दिखाई नहीं देते। इस तरह के 8 व्यवधान हैं। वस्तु होते हुए भी न दिखने में 8 कारण हैं। इस तरह से भगवान हमारे में है, तुम सब में है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखा ही नहीं। कबीरदास जी बोलते हैं कस्तूरी मृग, उसके नाभि से सुगंध उठता है, उसको पता नहीं ये सुगंध मेरे नाभि में है। उस गंध से प्रभावित होकर कहाँ है ये गंध, इसको मैं पाऊं, इसको मैं ढूंढूं, इसको मैं प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से भागना शुरू कर देता है। भागता है भागता है भागता है, लेकिन वह गंध कहाँ है? उसके नाभि में ही उसका गंध है, लेकिन वो ढूंढ कहाँ रहा है? जंगल जंगल घूम रहा है और गंध को ढूंढ रहा है। थक के जब अपना मुंह
पैरों के बीच डाल करके सो जाता है, तब उसे पता चलता है ये गंध तो मुझ में ही है, मुझ में ही है। तेरा साई तुझ में, तुम्हारा भगवान तुम में विराजमान है, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो। ढूंढ बाहर रहे हो और वो बसा अंदर। एक बूढ़ी मां घर में सुई खोई थी और घर के बाहर रात का समय सुई ढूंढ रही थी। रास्ते में घर के बाहर जब सुई ढूंढ रही थी, ने देखा, अरे मां क्या ढूंढ रही है? बेटा मेरा सुई खो गई है, उसी को मैं ढूंढ रही हूं। तो अकेले कैसे ढूंढेगी? वो भी ढूंढना शुरू किया। तीसरा व्यक्ति आया, वो भी शुरू किया। चौथा व्यक्ति आया, वो भी शुरू किया। इस तरह 20-25 लोग सुई ढूंढ रहे हैं। उसमें से एक बुद्धिमान सर उठाया और बूढ़ी माँ से पूछता है, हे माँ, सुई तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये बाहर आंगन इतना बड़ा है, ऐसे छोटी सुई को इतने बड़े आंगन में कहाँ ढूंढें? कहाँ पर गिरी है सुई? बोलो तो वहीं पे ढूंढ के तुम्हें दे सकें। तो बूढ़ी माँ बोली, ओ तुम न पूछे तो अच्छा। क्यों? तो माँ बोलते हैं, मेरी सुई तो खोई है घर के अंदर। सब के सब हैरान खड़े रह गए। ये पागल औरत इतना देर तक हमारे सभी के समय खराब कर दिए। तुमको सहायता करने के लिए हम ढूंढने आए, लेकिन तू तो सुई खोई अंदर और बाहर ढूंढ रही है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? वो बूढ़ी माँ हंसने लगी और बोलने लगी, मैंने तो सुई खोया अंदर, लेकिन बाहर ढूंढ रही हूं। तुम लोग पूछ रहे हो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या करूं? अंदर अंधेरा है, बाहर प्रकाश है। ढूंढने के लिए तो प्रकाश की जरूरत है। अंधेरे में मैं कैसे ढूंढूं? लोग बोले, तो कितनी पागल है। जहां तो सुई खोई है वहां अंधेरा हो, लेकिन वहां अंधेरा है ऐसा सोच करके खोई हुई चीज प्रकाश में आकर बाहर ढूंढेंगे तो कैसा मिलेगा? तुमको सुई मिलना हो, अंधेरा हो, लेकिन वहां पे प्रकाश करो और वहीं पे ढूंढो। जहां खोया है वहीं पे ढूंढो। खोया एक जगह पर और ढूंढ रहे हो एक जगह पर, तो मिलेगा कैसे? भगवान बसा है अंदर और तुम ढूंढ रहे हो बाहर। और सब लोगों का जवाब है, क्या करें, अंदर कुछ दिखता नहीं। आंख बंद करे तो अंधेरा ही अंधेरा है। भगवान तो दूर, कुछ एक कण भी नहीं दिखाई देता। कैसे हम ढूंढे अंदर भगवान को? लेकिन प्रकाश को अंदर ले जाना पड़ेगा, अंदर के प्रकाश को जगाना पड़ेगा, प्रकाशित करने पड़ेगा। लेकिन ढूंढना वहीं पड़ेगा जहां पे तुम खोए हो। वहीं ढूंढोगे तो वो मिल सकता है। अक्क महादेवी एक सुंदर वचन बोलती है, ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು
ಇರುಳು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು. ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿರ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮೊಳಗಿರ್ದ ಮಹಾಘನವನರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಕೆಟ್ಟರು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. एक धोबी कपड़े धोने के लिए सभी नदी पहुंच गया. गर्मी का दिन था. कपड़े धोते धोते पसीना पसीना निकल गए. प्यास लगी उसको. वो मन में सोचता रहा, कपड़े धोने के बाद पानी पीऊंगा. और थोड़े कपड़े रहे. उसको सब धोते 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 ज़्यादा गर्मी के कारण अंदर का पानी सब निकल आया और तुरंत उसको चक्कर आया. वहीं पे गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों के बाद वो मर भी गया. कितनी बड़ी दुस्थिति है. वो था कहाँ पे? नदी में ही था. मर क्यों गया? प्यासे मर गया. पानी नहीं पीने के कारण मर गया. इस तरह जीवात्मा भी दिन में हगलो नाल्कु जावा हसनक्के कुदिवरो. दिन के 4 प्रहर भोजन के लिए तरसते हैं और रात के 4 प्रहर चिंताओं के कारण बीत जाता है. लेकिन तुम में बसे उस चैतन्य परमात्मा को, सुखदायी आनंद रूपी परमात्मा को देखने के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते. धोबी तो पानी में ही था, पानी न पीने के कारण मर गया. कितना बड़ा विपर्यास है. आदमी की भी स्थिति इससे अलग नहीं है. सुख आनंद पूरा उसके अंदर भगवान के रूप में भरा हुआ है, लेकिन यह बंधन में क्यों पड़ा? उसको न देखने के कारण, उसका साक्षात्कार न होने के कारण. ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं दूर है. दूर तो है ही है, दूर भी है, नजदीक भी है. भगवान जितना नजदीक भी कोई नहीं है और भगवान जितना दूर भी कोई नहीं है. क्योंकि सारे सृष्टि के बाद भी वो है और सबके अंदर, सबके और सबसे अंदर भगवान विद्यमान है. तद्दूरे तद्वंतिके तदेजति तन्नेजति उपनिषदों में ये द्वंद्व बातें कहते हैं. वो दूर भी है, नजदीक भी है. लेकिन सबसे नजदीक है तो दूर का पकड़ने का प्रयास क्यों करना? दूर जाके पकड़ने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं. इतना नजदीक है तो फिर कहाँ जाना दूर? भगवान को जानना इसलिए कठिन नहीं है कि वह बहुत दूर है. वो इसलिए कठिन है कि वह बहुत नजदीक है. लेकिन खुद को जानो तो भगवान को जान सकते हो. भगवान को जानने के लिए, खुद में बसे भगवान को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए खुद के दिमाग में से डाले हुए
उनके अभिप्राय हैं, उनको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। थोड़ा आप अपने अंदर झांकोगे, आपके प्रति आपकी धारणाएं क्या है? कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो तुम क्या बोलोगे? कोई बोलता है मैं अमीर हूँ, कोई बोलता है मैं विद्वान हूँ, कोई बोलता है मैं गरीब हूँ, कोई बोलता है मैं राजा हूँ, कोई बोलता है मैं सेनापति हूँ, कोई बोलता है मैं मंत्री हूँ। ये सब के सब धारणाएं आपके दिमाग में डाले हुए हैं। आप कौन हैं आपको पता नहीं है। दूसरों के डाले गए धारणाओं को आप पकड़े हुए हैं, दिमाग से पकड़े हुए हैं और उसी को समझकर बैठे हैं कि मैं हूं। लेकिन उन सब को निकालने के बाद पता चलता है कि तुम कौन हो। आपके दिमाग में अपना दिमाग नहीं है, दूसरों का ही दिमाग है। जब तुम छोटे बच्चे थे, अभी अभी जन्मा हुआ, उस समय तुम्हारे पास न कोई नाम है, तुम्हारे पास न कोई पहचान है, तुम्हारे पास न कोई संपत्ति है, तुम्हारे पास न कोई धारणा है। लेकिन सारा परिवार इकट्ठा है, एक एक धारणा तुम्हारे दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तुमको तुम्हारा दिमाग कुछ समझना शुरू करता है, तब से लेकर आज तक सारा परिवार, दुनिया के सभी लोग आपके दिमाग में कुछ न कुछ डालते ही जा रहे हैं। उसको तुम पकड़ते जा रहे हो। कोई आकर बोली तू मेरा बेटा है, तो समझ गया मैं बेटा हूं। कोई आकर बोला तू मेरा भाई है, तो समझ गया भाई। कोई आकर बोला तू मेरा भांजा है, समझ गया मैं भांजा हूं। कोई आकर बोले तुम मेरे पति हो, कोई आकर बोले तुम मेरे पिता हो। सभी दूसरों की धारणाएं। इसमें तुम्हारा कहाँ है? तुम कहाँ हो? इसलिए हम कह रहे थे आपके दिमाग में आप नहीं हो। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश का पाठ चल रहा था। बोर्ड पे लिखा था दिस इज माय हेड। टीचर उसके अर्थ को समझा रहे थे बच्चों को। दिस इज माय हेड यानी यह मेरा सिर है। टीचर बोले दिस इज माय हेड यानी यह मेरा सिर है, यह मेरा दिमाग। बाकी बच्चे तो ठीक। उसमें एक बच्चा था, ओ उसको डेढ़ पंडित बोलते हैं। ऐसा एक बच्चा था, समझा दिस इज माय हेड यानी टीचर बोल रहे थे यह मेरा सिर है। उसने समझा दिस इज माय हेड यानी यह टीचर का सर। लिख लिया। घर जाकर के कंठस्थ करना शुरू किया। दिस इज माय हेड यानी यह टीचर का सर। दिस इज माय हेड यानी यह टीचर का सर। उसके पिता आए,
अरे मेरा बेटा गलत बोल रहा है, उसको ठीक करो। तुरंत आके बोला, देखो बेटा, दिस इज माई हेड, यानी यह टीचर का सर, ऐसा नहीं होता। दिस इज माई हेड, यानी यह मेरा सर है। ओ ठीक है पापा। ओ बोल के चला गया। फिर ये शुरू किया, दिस इज माई हेड, यानी यह मेरा पिता का सर। क्योंकि पिता बोल रहे थे दिस इज माई हेड, यानी मेरा सर, मेरे पिता का सर। उसको कंटेस्ट करना शुरू किया। माँ को पता चला, माँ आई। माँ बोली, ये बेटा तो गलत बोल रहा है, दिस इज माई हेड यानी ऐसा नहीं है, दिस इज माई हेड यानी यह मेरा सर। बेटा फिर बदल डाला, दिस इज माई हेड यानी यह मेरी माँ का सर है। ऐसे रटते 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 वापस दूसरे दिन स्कूल गया। उसी दिन ऊपर के साहब आए परीक्षा करने के लिए। बोर्ड के ऊपर लिखा था दिस इज माई हेड। परीक्षक जब आए, इसका अर्थ तुम सब लोग समझते हो? हाँ सर, सब समझते हैं। किसी से भी हम पूछ सकते हैं, तुम बोलोगे? ठीक है, हम बोलेंगे। दुर्भाग्यवश उसी बालक के ओर हाथ दिखाया, बोलो। वो बोला, यानी जब मैं स्कूल में होता हूँ उस समय यह टीचर का सर, जब पिता नज़दीक आते हैं तो यह पिता का सर, जब माता नज़दीक आती है तो यह मेरी माता का सर। परीक्षक आश्चर्यचकित हो गए और वो समझाने लगे, अरे पागल, ऐसा नहीं है, दिस इज माई हेड यानी यह मेरा सर, यह मेरा सर, यही उसका अर्थ है। समझ गए? अब बोलो। तो फिर बच्चा बोलने लगा, जब मैं स्कूल में होता हूँ तो सर का सर है, घर में जाता हूँ तो माँ बाप का सर है, जब ऊपर से साहब आते हैं तो साहब का सर। उसके दिमाग से वो जाने को ही तैयार नहीं है। जिस तरह से वह बैठा है उसी तरह से आप सब के दिमाग में अपना दिमाग नहीं है, दूसरों के डाले हुए धारणाएं हैं। कोई कहा तुमको कितना सुंदर दिख रहे हो आज, मन में बैठ गया मैं सुंदर हूं। किसी ने कहा कितना कुरूप हो, कितना काला हो। सभी दूसरों की धारणाएं हैं, ऊपर की धारणाएं हैं, लेकिन असल में इन सबको हटाओ। माँ बाप, परिवार, दुनिया, सारे लोग जितने भी डाले हैं उन सबके हटाओ। सबको हटा के एक बार अंदर झांको, तब पता चलेगा कि तुम कौन हो। तुम में भी भगवान विद्यमान है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले इनको हटाना पड़ेगा। ये वैसे काम करते हैं जैसे स्वयं प्रकाश एक रत्न पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 100,000 चादर डाले हैं। रत्न के प्रकाश दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता। क्यों? चादर पड़े हुए हैं। एक एक करके उन चादरों को हटाते जाओ। जब सभी चादर हट जाएंगे उसके बाद तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, वह रत्न तुमको दिखाई पड़ता है। उसके लिए बाहर से कोई प्रकाश लाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वही स्वयं प्रकाश है। उसी के प्रकाश से तुम उसको देख सकते हो,
सूरज को देखने के लिए कोई प्रकाश की जरूरत है? चांद को देखने के लिए कोई प्रकाश की जरूरत है? उसी के प्रकाश में उसको देखना है। उसी तरह से आत्मा अंदर है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसी के प्रकाश में से उसको देखना है। बाहर के दिया अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। एक बार उसका स्वरूप ठीक ठीक तुझे पता हो गया, तुम्हें पता हो गया, तो तब तुम्हें मनो अनुभव होगा उसके जैसा प्रकाशवान वस्तु इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं। उपनिषद कहते हैं वहाँ न कोई सूर्य है, न कोई चंद्रमा है, न कोई विद्युत दीप है, न कोई दिया है, लेकिन वहाँ पे एक प्रकाश है। उसी प्रकाश के कारण सब दिखते हैं। अंदर का प्रकाश बुझ गया, बाहर जितने भी प्रकाश हो तुमको कुछ भी नहीं दिखाई देते। अंदर प्रकाश हो तो बाहर का प्रकाश काम करता है। व्यक्ति जब मरा हुआ होता है, अंदर का प्रकाश बाहर, जब अंदर का प्रकाश ही चला गया, मरे हुए व्यक्ति के पास 1000 सूरज आके खड़े होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं दिखता। क्यों? अंदर का सूरज बुझ गया। अंदर के सूरज को जब तक जलाए रखोगे तब तक सब कुछ दिखाई पड़ता है। जब वो बुझ गया तो सब सारे बुझ गए। उसी के प्रकाश में उसको देखना है, समझना है। जब हम खुद को हम बोलते हैं, मैं बोलते हूं, उसमें क्या क्या है? जैसे तुम असल में कौन हो? शरीर है, अवयव है, सारी इंद्रियां हैं, मांस मज्जा है, मन बुद्धि है, अहंकार है। इन सब में तुम कौन हो? कभी तुम शरीर को मैं बोलते हो, कभी तुम इंद्रियों को मैं बोलते हो, कभी तुम मांस मज्जा को मैं बोलते हो, कभी तुम बुद्धि मन अहंकार को भी मैं बोलते हो। लेकिन असल में तुम कौन हो? तुम हो कौन? शास्त्रों में इसकी बड़ी चर्चा। भगवत गीता में कहा गया है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सा। यो बुद्धेः परतस्तु सा। असल में तुम जो हो इंद्रियों से भी परे हो, शरीर से भी अंदर हो। मन से भी परे हो। इंद्रियों से परा मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम। बुद्धि भी वहां काम नहीं करती। उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां तक आपका मन और आपकी वाणी यात्रा करते 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 चला जाता है, जा करके अब आगे हम नहीं जा सकते, ऐसा सोच करके जहां से वापस आते हैं उससे अंदर, उससे भी दूर तुम हो, उससे भी। यो बुद्धेः परतस्तु सा। सिद्धांत शिखामणि में भी इसका उल्लेख है।
पिंड ज्ञान स्थल में। नेन्द्रियाणाम न देहस्य न बुद्धेरात्मता भवेत् अहम प्रत्यय वेद्यत्वात् अनुभूत स्मृतेरपि शरीरेन्द्रिय बुद्धिभ्यो व्यतिरिक्त सनातन। व्यतिरिक्त सनातन आत्मा नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं, बुद्धि भी आत्मा नहीं, ये सारी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए एक सूत्र वो देते हैं। जगत गुरु रेणुकाचार्य जी का सूत्र है, अहम प्रत्यय वेद्यत्वात् अनुभूत स्मृतेरपि। अहम से ये सभी जाने जाते हैं, खुद के द्वारा ये सभी जाने जाने के कारण ये आत्मा नहीं है। आपको एक युक्ति हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। जब भी तुम किसी के प्रति यह मेरा है बोलते हो, वह हर वक्त मेरा ही बन के रहेगा, वह कभी तुम नहीं बन सकते। जो तेरा है वह कभी तुम नहीं बन सकते, जो मेरा है वह कभी मैं नहीं बन सकता। मेरा हर वक्त मुझसे अलग रहता है, मैं से अलग रहता है, मैं वो कभी नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए तुम बोलते हो यह घर मेरा है, ठीक, घर तेरा है, लेकिन कभी तू घर बन सकता है क्या? घर तुम बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा है। जो भी तुम्हारा होता है वह कभी तुम नहीं बन सकते। तुम बोलते हो ये मेरा बेटा है, वह बेटा तुम कभी हो सकते हो? नहीं हो सकते। यह मेरी गाय है, गाय तुम हो सकते हो? गाय अलग, तुम अलग। मैं से मेरा कभी भी अलग रहता है। इसी तरह से तुम समय आने पर बोलते हो कि देखो मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरे हाथ घाव हो गया है। तुमने क्या बोला? मेरा हाथ बोला, है ना? तो इससे स्पष्ट हो गया कि हाथ तू नहीं है, यह हाथ तुम नहीं हो। इसी तरह से पैर को मेरा बोलते हो, अपने मुंह को मेरा बोलते हो ना? अंदर का खून बाहर निकला, उस खून के प्रति भी तुम बोलते हो देखो मेरा खून कितना लाल है, मेरा खून कितना घट्ट है, बोलते हैं ना? तो इससे स्पष्ट हो गया खून भी तुम नहीं हो। तुम्हारा है लेकिन तुम नहीं हो। खून तुम्हारा है लेकिन तुम नहीं हो। कभी खेलते कूदते समय आपके पैर का हड्डी टूट गया तो तुम क्या बोलते हो? डॉक्टर बोला फ्रैक्चर हो गया, तो तुम बोलते हो मेरी हड्डी टूट गई। तुम क्या बोले? मेरी हड्डी टूट गई। तो हड्डी भी तुम नहीं हो। इसी तरह से कभी कभी ये भी तुम बोल जाते हो मेरा मन आज ठीक नहीं है, बहुत चिंतित है, तो मन भी तुम नहीं हो। मेरी बुद्धि आज ठीक से काम नहीं कर रही है, बहुत चंचल हो रही है। बुद्धि को क्या बोला? मेरी बुद्धि बोला।
तो बुद्धि भी तुम नहीं बन सकते। जिस किसी को भी तुम मेरा बोलते हो वो कभी तुम नहीं बन सकते। तो इससे स्पष्ट हो गया शरीर भी तुम नहीं बने, इंद्रियां भी तुम नहीं बन सकते, क्योंकि इन सब को तुम मेरा 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 बोलते हो। नहीं बोलते। जब ज्यादा कष्ट आता है, त्राही मच जाता है देह में, उस समय बोलते हो मेरे प्राण कब रहे, मेरे प्राण मेरे वश में नहीं है। प्राण को क्या बोला? मेरे प्राण बोला। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? प्राण भी तुम नहीं हो, प्राण भी तुम नहीं हो सकते। इन सब से तुम अलग हो, लेकिन तुम क्या हो इसको बोलना मुश्किल है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य जी बोलते हैं न पृथ्वी तुम हो, न आकाश तुम हो, न वायु तुम हो, न जल तुम हो, न भूमि तुम हो, तुम न शरीर हो, न गंध हो, न घ्राण हो, तुम तो चिदानंद रूप हो। चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। लेकिन उसको समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जो वो नहीं है उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन जो वो है उसको बोलना कठिन है, क्योंकि वहाँ जाकर वाणी बंद हो जाती है। उपनिषदों ने इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहा, उसका निर्वचन नहीं कर सकते, उसके प्रति कुछ बोल नहीं, शब्द वहाँ जा करके थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, शब्दों से भी वह परा। वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम आया, वनवास के लिए गए थे। सीता को रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता के लिए राम चिंतित था। उसी चिंता में मग्न राम वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ महर्षि अपने आश्रम में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। श्री राम के मन में था मैं राजकुमार हूं। सीता के लिए चिंता भी थी उनके मन में। वशिष्ठ जी के सामने गए, झुक के नमस्कार नहीं किए, खड़े खड़े हाथ जोड़े नमस्कार किए। और वशिष्ठ जी आंख खोल करके देख लिए। देखने के बाद पता चला ऋषि मुनियों को दिव्य दृष्टि थी। पता होने के बाद जानबूझकर पूछे, हे तुम कौन हो? तुरंत श्री राम बोले, मेरा नाम श्री रामचंद्र है। वशिष्ठ फिर बोले, देखो बड़ों के साथ जब भी बात करते हो तो कुछ विचार करके बात करना चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, मैंने पूछा तुम कौन हो। तुम्हारा नाम क्या है पूछने पर तुम्हारा जवाब ठीक है, मेरा नाम श्री रामचंद्र है, ठीक जवाब। लेकिन मैंने पूछा तुम कौन हो। श्री राम दुविधा में पड़ गए। उसको लगा शायद मेरे बारे में इनको पता नहीं है।
मेरे पिता के द्वारा मेरा परिचय करा दूं, ऐसा सोच करके श्री राम बोले, आप अयोध्या के महाराजा दशरथ के नाम सुने होंगे। मैं उस दशरथ का बड़ा भाई, बड़ा पुत्र हूँ, बड़ा बेटा हूँ। वनवास के लिए आया हूँ उनके आज्ञानुसार। वशिष्ठ जी फिर बोले, अरे देखो भाई, प्रश्न को समझकर जवाब दो। मैंने ये नहीं पूछा तेरा पिता कौन है, किसका बेटा है। मैंने पूछा तुम कौन हो। श्री राम को फिर दिक्कत खड़ी हो गई। वो विचार करने लगे, शायद महर्षि जी को मेरा पिता का भी परिचय नहीं है, मेरे पिता का भी परिचय नहीं है, तो ऐसी हालत में मैं अपना परिचय इनको कैसे करवाऊं। फिर वो बोले, जनक महाराज को सभी जानते हैं, क्योंकि उनको विदेह मुक्त कहा जाता है, जीवन मुक्त जनक कहा जाता है। ऋषि मुनियों का ज़्यादा संपर्क, परिचय इनको है, उनके द्वारा मैं अपना परिचय दूं, ऐसा सोच करके श्री राम बोले, आप जनक महाराज के नाम सुने होंगे, मिथिला नगर के महाराजा। उस जनक महाराज को एक पुत्री थी, उसका नाम सीता। उस सीता का पति हूं मैं सीतापति हूं। वशिष्ठ जी बोले, अरे इसको किसने पूछा, तुम्हारे कितापति को? तुम्हारे इस कितापति को किसने पूछा? तुम किसका पति हो, या तुम्हारी पत्नी कौन है? ऐसा पूछने पर यह जवाब ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? श्री राम पसीना पसीना हो गए, जवाब नहीं दे सके, एकदम साष्टांग डाले। साष्टांग डाल करके उठ खड़े हो करके बोले, क्षमा करिए, मैं कौन हूँ या मुझे पता नहीं है, कृपा करके मैं कौन हूँ इसको आप ही बताएं, आप ही बताओ। वशिष्ठ फिर गुस्से हो गए, बोलने लगे, श्री राम तुम कैसा आदमी हो? तुम कौन हो तुमको पता नहीं है, तो फिर मुझे कैसे पता होता? तुम कौन हो अगर तुम्ही को पता नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तब श्री राम संभल के बोले, इस बात से मैं राजी नहीं हूं। मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कौन हूं आपको पता है। मैं कौन हूं अगर आपको पता न होता, अब तक इतने जवाब मैंने दिए, उनमें से एक न एक जवाब को आप अवश्य मानते। एक भी जवाब को आप नहीं माने, इससे यह सिद्ध होता है कि मैं कौन हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। वशिष्ठ जी हंसे और बोलने लगे, मालूम है लेकिन बोल नहीं सकते, के बारे में बोलना नहीं। ಅದು ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಹೇಳದೆ ತಿಳಿಯದು, ತಿಳಿಯದೆ ಹೊಳೆಯದು, ಹೊಳೆಯದೆ ಇಳಿಯದು ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. जब तक नहीं बोलते तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन वह बोलने की बात नहीं है। बोलने तक समझ में नहीं आता, लेकिन
उसको बोलना नहीं आता, फिर कैसे बोला जाए? जब तक बोलते नहीं तब तक समझते नहीं, और उसको बोलना नहीं आता फिर समझना कैसा? हेಳುತ್ತಂ ಒತ್ತಂದ ಅನುವಿನಿಂದ, कन्नड़ में लिखा है। उसको समझने का एक अपना ही ढंग है, अपना ही एक विशेष तरीका है। उस तरीके के माध्यम से उसको समझना है। कैसे समझना है? किसी भी वस्तु का जब तुम ज्ञान करते हो, समझते हो, 3 प्रकार से उसको समझाया जाता है। पहला है वस्तु निर्देशन मूलकतया, है गुण कथन मूलकतया ज्ञानम, तीसरा है इतर व्यावर्तकतया ज्ञानम। किसी भी वस्तु को समझना हो 3 ढंग से, 3 प्रकार से उसको समझना होता है। पहला है उस वस्तु को सामने खड़ा करो, देखो यही ये वस्तु है, दिखा दो, बात खत्म हो गई। वस्तु निर्देशन मूलकतया ज्ञान, वस्तु का निर्देशन करो, देखो यह है, देखो पता करो। जब वस्तु सामने होता है, जब वस्तु दिखता है, उस समय इस ज्ञान को हम समझा सकते हैं। लेकिन जब वो वस्तु सामने नहीं होता, उस समय उसको कैसे समझना? गुण मूलकतया। अगर वह वस्तु जिसको तुम समझना चाहते हो वह सामने नहीं है, ऐसी हालत में उसके जो विशेष गुण हैं, उसके जो विशेष लक्षण हैं, उन लक्षण और गुणों के द्वारा, उसका वर्णन करने के द्वारा उसका परिचय तुम दे सकते हो, समझा सकते हो। होते हैं ना, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में अपने ही विशेष गुण होते हैं, अपनी ही विशेषताएं होते हैं। उन्हीं गुणों को, उन्हीं विशेषताओं को बता करके उसका परिचय तुम करा सकते हो। ठीक है। ये दूसरा, जिसके पास जो सामने भी नहीं है और जिसके पास न कोई गुण है न कोई रूप है, उसको कैसे समझाएं? उसके लिए ये तीसरा मार्ग है, इतर व्यावर्तकतया ज्ञानम। जो वो नहीं है उसके बारे में बताते जाओ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जब वो आ जाता है, उसके बारे में बोलना आ जाता है, उस समय चुप हो जाओ, पता हो जाता है। सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ था, सभी राजा महाराजा आए थे उस स्वयंवर में भाग लेने हेतु। सीता उद्यानवन में पहले ही राम को देख चुकी थी और मन में निश्चय कर चुकी थी, वरमाला इसी को डालना है। सखियों को पता था सीता उद्यानवन में किसी को देखा है, उद्यानवन में किसी को सीता ने देखा है। उनकी मन में उत्सुकता, कौन है राम, कैसे इसको समझे। सभी लोग पूछने लगे राम कौन है, सभी सखियां पूछने लगी इनमें से राम कौन है। भारतीय संस्कृति में नारियों का यह विशेषता है, पति का निर्देशन और पति का नाम सीधा सीधा नहीं लेते। सीता लज्जा से भर गई और कुछ नहीं बोली, लेकिन एक सखी ऊपर उठ के खड़ी हो गई। अंतःपुर में बैठी थी सीता और सीता के सखियां सभी
बाहर राज महाराजाओं का बैठने का व्यवस्था किया गया था। जहाँ पे सखियाँ बैठे थे वहाँ पे खिड़की थी, उस खिड़की में सब लोग दिखते थे। सखियाँ पूछने रही इनमें से कौन है। सीता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक सखी उठी और किसी एक महाराजा के तरफ हाथ उठाया, यह राम है क्या? सीता बोली नहीं। फिर दूसरे की ओर हाथ दिखाते हुए पूछी, यह राम है क्या? सीता बोली नहीं। फिर तीसरे की ओर, सीता बोली नहीं। फिर चौथे की ओर। जब हाथ सीधा सीधा राम की ओर गया और उस समय जब सखी पूछी ये राम है क्या, सीता न हाँ बोली और ना बोली, चुप हो गई। सखियों को सब पता चल गया। सीता बोली क्या? सीता कुछ बोली राम के बारे में? नहीं बोली। सखियों को पता चला कि नहीं चला? सीता नहीं बोली, लेकिन सखियों को पता चला। इसी तरह से आत्मा के बारे में भी पता करना है। गुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन शिष्य को समझना है, क्योंकि जहाँ वाणी नहीं जाती वहाँ गुरु कैसे बोले? मौन से ही उसको समझना है। केवल इशारा किया जा सकता है, उस इशारे के द्वारा ही शिष्य को उस तत्व को समझना है। समझने वालों को इशारा काफी है। गुरोस्त मौन व्याख्यानम शिष्याश्चिन्न संशया। गुरु मौन से ही उसकी व्याख्या करते हैं और शिष्य को उसी मौन को समझ करके अपने सारे संशयों को, संदेहों को दूर करके तत्व को समझना है। जो व्यक्ति इस तरह से मौन को साधता है, मौन को समझता है और बिना गुरु के बोले ही, गुरु के इशारों से खुद के आत्म तत्व को समझता है, वही अंत में जा कर के परम तत्व को प्राप्त करता है, परम तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। पुरुष से वह पुरुषोत्तम बन सकता है। यहाँ पर पुरुषोत्तम का दर्शन करना नहीं, यहाँ पर पुरुषोत्तम को पाना नहीं, यहाँ पर पुरुषोत्तम हो जाना है। पुरुषोत्तम ही तुम हो, लेकिन अज्ञान के कारण, विस्मृति के कारण उसको तुम नहीं समझ रहे। गुरु केवल उस विस्मृति को, उस अज्ञान को दूर करता है। विस्मृति, अज्ञान दूर हुआ तो साक्षात्कार स्वयं सिद्ध हो जाता है और तुम स्वयं पुरुषोत्तम बन जाते हो। अब इससे आगे कुछ बोलने को नहीं रह जाता। जहाँ पे वाणी मौन हो जाती है वहाँ मौन ही अच्छा है। इसलिए बुद्ध भगवान के विषय में एक शब्द भी नहीं बोले। लोग नास्तिक समझे लेकिन उसको स्वीकार किया, लेकिन भगवान के सब विषय में एक शब्द भी बुद्ध नहीं बोले, क्योंकि उसको बोला मौन से ही समझना है, इशारों से उसको समझना है। इस तरह से समय पुरुषोत्तम बन जाना है। विगत 7 दिनों से इस पुरुषोत्तम मास के पवित्र संदर्भ में काशी जगतगुरु महास्वामी जी के आदेशानुसार 1 सप्ताह का श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन संपन्न हुआ। काशी महास्वामी जी प्रारंभ में अपने आशीर्वचन में बोल रहे थे
यडूर में ऐसे थे वैसे थे, हमको वो सिखाया ये सिखाया करके। लेकिन असली बात तो ये है, आज जो भी हम सीखे हैं वो सब काशी जगत गुरु महास्वामी जी के माध्यम से ही सीखे हैं। जो भी हम सीखे हैं, केवल यडूर में काशी महास्वामी जी 2 महीने रहे। उस समय उनको वहाँ पे खुशी रखना, उनकी सेवा करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काशी महास्वामी जी जब हम पूर्वाश्रम में थे, अध्ययन कर रहे थे, उस समय 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 13 साल तक हम काशी में रहे। 13 साल तक हमको काशी में रहने का अवकाश दिया, शिक्षा दिए, मार्गदर्शन दिए, प्रसाद दिए। उस 13 साल का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? ये 2 महीने कुछ भी नहीं है। जो भी हम सीखे हैं उनका आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और हमारे ऊपर बने रहे, ऐसे प्रार्थना महास्वामी जी के सानिध्य में हम करते हुए। और महास्वामी जी ने कहा कि फिर आगे कभी भी ये फेसबुक द्वारा, काशीपीठ के फेसबुक के द्वारा आशीर्वचन करने तो अवश्य श्रीशैल जगत गुरु भी उसमें जुड़ना चाहिए। महास्वामी जी का आदेश शिरोधार्य है, और उनके मार्गदर्शन से ही श्रीशैल पीठ का भी फेसबुक तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में उससे भी इसी तरह के धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जब उसका आयोजन किया जाएगा, उस समय काशी जगत गुरु महास्वामी जी भी उसके लिए आशीर्वाद करके अवश्य उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी होना चाहिए। ऐसे विनंती प्रार्थना काशी महास्वामी जी को करते हुए आज विशेष समापन होने के कारण 7 दिनों में बहुत कुछ विचार श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी बोले, और बहुत कुछ विचार हजारों लोग जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठ करके तंत्र ज्ञान के माध्यम से आप लोगों ने सुना। और बहुत से लोग फ़ोन करके, दूरवाणी करके उसका संतोष भी जाहिर किया। हमको बहुत अच्छा लगता है करके खुशी जाहिर की। उन सब के लिए, जो बोले जो नहीं बोले, मन में ही आनंदित हुए और उसका रसास्वादन किया, उन सब को भगवान का मंगल आशीर्वाद बने रहे। और आज समापन के इस समापन मतलब अधिक मास का समापन नहीं, केवल श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी के आशीर्वचन का समापन। कल से फिर काशी जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन इसी समय में होगा, और उसके बाद नवरात्रि के संदर्भ में भी वह आशीर्वचन जारी रहेगा। आज सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, श्रीशैल से आशीर्वचन सुन रहे हैं। श्रीशैल के पवित्रता के कुछ दृश्य भी हम देखना चाहते हैं, उसको लाइव में देखें, दिखाइए करके विनती किए थे। इसलिए आज हम स्वयं भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहाँ देवस्थान है और जहाँ भ्रमरांभा शक्तिपीठ है, उन दोनों के बीच में विराजमान श्रीशैल जगत गुरु सूर्य सिंहासन पंडिताराध्य पीठ में ही आकर के आज का आशीर्वचन दे रहे थे। आशीर्वचन के तुरंत बाद आप सब लोगों को श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का शिखर दर्शन हम कराएंगे, क्योंकि श्रीशैल क्षेत्र की गरिमा है, महिमा है। श्रीशैल शिखरे दृष्टे पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीशैल के मल्लिकार्जुन का शिखर जीवन में एक बार देख लिया तो उसको दूसरा जन्म ही नहीं है, इसी जन्म में उसको मुक्ति मिल जाती है।
इसी जन्म में वह पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है। पुरुष पुरुषोत्तम होने के अनेकों मार्गों में श्रीशैल मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग का शिखर दर्शन भी एक, ऐसा स्कंद पुराण के श्रीशैल खंड में बताया गया है। इसीलिए आशीर्वचन के तुरंत बाद अभी आपको शिखर का दर्शन कराएंगे। शिखर दर्शन होने के बाद, क्योंकि शिखर दर्शन का इतना पुण्य है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से जो पुण्य भाग्य आपको प्राप्त होता है वो केवल शिखर दर्शन से मिलता है। आप लोग तो आ नहीं पा रहे हैं कोरोना के कारण, बैठे बैठे आशीर्वचन दूर दूर से सुन रहे हैं, देश विदेश में भी बैठ करके सुन रहे हैं। तो देश विदेश में बैठ करके भगवान मल्लिकार्जुन का शिखर दर्शन भी आप लोग लाइव में करें। और शिखर दर्शन के बाद वीरशैव धर्म के संस्थापक पंच आचार्यों में से एक जगत गुरु पंडिताराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का भी आपको दर्शन कराएंगे। और उस पंडिताराध्य जी के सामने ही आरती होगी। आरती के बाद यह कार्यक्रम समापन होगा। थोड़ा यह विलम्ब बहुत हुआ होगा, भले ही हुआ होगा, लेकिन इन सब का पुण्य आपको इस विलम्ब समय में प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ आप लोग उठाएं। ऐसे सूचना देते हुए आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ನೂರು ನಯನ ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡಲು, ನೂರು ಹೃದಯ ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ತೇಜವ ಹರಿಯಲು. ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡಲು, ನೂರು ಹೃದಯ ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ತೇಜವ ಹರಿಯಲು. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇನೋ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯವು, ಅಭಿನವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು. ನೂರು ನಯನ ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡಲು, ನೂರು ಹೃದಯ ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ತೇಜವ ಹರಿಯಲು. श्री पंडिताराध्य मंगलम, श्रीशैलवासाय मंगलम. श्री पंडिताराध्य मंगलम, श्रीशैलवासाय मंगलम.
मल्लेश जाताय महिमावताराय मल्लेश जाताय महिमावताराय मुनियोगी पूजाय मंगलम शिव श्रीशैलवासाय मंगलम गुरुलोकनाथाय मंगलम वर गुरु पुण्यचरिताय मंगलम श्री सूर्य सिंहासनाधीश शुभदाय श्री सूर्य सिंहासनाधीश शुभदाय शिव शरण वन्द्याय मंगलम शिव श्रीशैलवासाय मंगलम कलिकलुषनाशाय मंगलम वर करुणाकटाक्षाय मंगलम निगमागमुक्ताय निगमान्तबोधाय निगमागमुक्ताय निगमान्तबोधाय नित्याय शुद्धाय मंगलम शिव श्रीशैलवासाय मंगलम आनंद भरिताय मंगलम कवि आनंद पोषाय जम्भोजं द्वाराजं वैराजं परमेष्टं राजं महाराजमहाधिपत्यं साम्बजय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु उमापति पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर जन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की, श्रीशैल भ्रमरांभा समेत मल्लिकार्जुन नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। मानवा धर्म के जयवागली, मानवा धर्म के धर्मदिंदले विश्व के, धर्मदिंदले विश्व के। वंदे पंडिताराध्यं, वंदे पंडिताराध्यं। सांब जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव।